عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں آج ایک بار حجاب بہت زیادہ سرخیوں میں رہا۔ حجاب کو بیچ راستے میں پولیس کی جانب سے اتارے جانے کی وجہ سے لوگوں میں اشتعال پایا جا رہا ہے، تو دہلی کے روہنی کوٹ احاطے میں ایک بار پھر گولیوں کی گونج سنائی دی ہے اور مشرقی جنوبی دہلی میں بھی بلڈوزر چلنے کا مطالبہ کیا ہے بی جے پی کی جانب سے۔ اعظم خان سے ملے شیو پال، تو کس طرح سیاست میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس وقت دھرم سنسد تقریر کو نفرت انگیز ماننے سے انکار کرنے پر سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کو پھٹکار لگائی ہے۔ سنبھل کی جامع مسجد پر جل چڑھانے کی کوشش کی گئی تو جو ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں، یہ کہتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے ایک مرتبہ پھر وارننگ جاری کی ہے۔ تو وہیں پر بلڈوزر کے بعد ای ڈی کی انٹری ہو چکی ہے جہانگیر پوری میں۔ کچھ تفصیلات ہیں جیسے کہ سی ایس ایف جوانوں سے بھری بس پر گرینیڈ سے حملہ جو ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات رکھوں گا۔ یہ ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں اور کیسے چل رہا ہے۔ لگاتار مختلف بستیوں سے ناظرین گرامی اس وقت تصاویر آ رہی ہیں اور یہ سب کچھ کام جو ہو رہا ہے وہ آپ ہی کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ مزید بستیوں میں بھی کام جاری ہے، وہاں سے بھی آپ کو تفصیلات، وہاں سے جو تصاویر آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ صبح مارننگ میں ہم نے دکھایا تھا کہ کراولی میں بھی کس طرح ہم نے راجستھان کے وہاں پر راشن بانٹا گیا تھا۔ جن احباب نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ حصہ لیں تاکہ ہم مزید جو تقاضے آ رہے ہیں بستیوں کے، ان بستیوں کے بھی غریب، لاچار، بیوہ اور یتیم اور مزدور اور مختلف قسم کے لوگوں کا تعاون کر سکیں۔ نیچے نمبرات ہیں، اس پر واٹس ایپ کر لیں۔ ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ آج حجاب ایک مرتبہ پھر ریاست کرناٹک میں سرخیوں میں رہا اور اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ منگلور کے کار اسٹریٹ میں بیچ سڑک میں ہی حجابی خواتین سے برقع اتارنے کے لیے پولیس نے مجبور کیا۔ اس طرح کے الزامات اس وقت منگلور پولیس پر لگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پی یو سی کے ایگزامز چل رہے ہیں، اس میں بھی حجاب نہ پہننے کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا یہاں کی حکومت کی جانب سے۔ ایسے میں آپ کلاس روم میں یا پھر جہاں آپ کو ایگزامز دینا ہے جس روم میں، وہاں تو آپ نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بیچ راستے میں برقع اتارنے کا آخر کیا مطلب ہے؟ کہیں اس سے مسلم خواتین کی، مسلم طالبات کی بے عزتی کی جا رہی ہے کہتے ہوئے جو ہے اس وقت پوری طرح سے یہاں کی پولیس اس کارروائی کو مسلم خواتین کی بے عزتی کرنے اور توہین کرنے پر لگایا جا رہا ہے۔ دراصل ناظرین گرامی اس وقت جو ہے یہ کرناٹک کے منگلور کے کار اسٹریٹ کے ایک امتحانی مرکز کے سامنے سے یہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے۔ وہ ویڈیو تو ہم دکھا نہیں سکتے، البتہ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے اور حجابی خاتون بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے یہاں پر کہا گیا کہ وہ حجاب پہن کر کے پریکشا ہال میں جا نہیں سکتے، ان کو یہاں پر جو ہے یہ نکالنے پر مجبور کیا گیا، حجاب اتارنے پر اور برقع اتارنے پر۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو فرمان جاری کیا گیا ہے وہ صرف امتحانی مراکز کے احاطے کے اندر پہنچ کر کے بھی اگر یہ بچیوں کو حجاب اتارنے پر کہا جاتا تو ٹھیک تھا، لیکن اس طرح بیچ سڑک پر کیے جانے کی وجہ سے اس وقت مسلم خواتین کی توہین کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جبکہ منگلور پولیس کے سلسلے میں جب اس سلسلے میں سوالات کیے گئے تو وہ صاف انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ طالبات از بخود جو ہے وہ اپنی دیگر طالبات، ساتھی طالبات کے ساتھ برقع اتارنے کے لیے خود گئی تھی ایک بس اڈے کے قریب، ہم نے ان کو جو ہے اتارنے پر مجبور نہیں کیا ہے کہتے ہوئے پولیس محکمے کی جانب سے یہ فرمان بھی سامنے آنے اور یہ وضاحت سامنے آنے کی بات بھی کہی جا رہی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی بی جے پی کی نفرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس وقت حجاب پہن کر کے اگر کوئی پریکشا ہال میں آئے تو ان کے خلاف جو ہے کرمنل کیس درج کرنے کے سلسلے میں رگھوپتی بھٹ نے بات کہی ہے جو بی جے پی کا لیڈر ہے اور ایم ایل اے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے حجاب خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس طرح بی جے پی کے لیڈران لگاتار نفرت پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उड़पी का एमएलए रघुपति भट्ट है और लगातार मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात के ख़िलाफ़ जो है ये नफ़रत भड़काता ही रहता है। इसी की वजह से ये सारा मामला पेश आया था उड़पी से। अब ये कह रहा है कि जो है जो कोई भी तालिबा इम्तिहान हाल में हिजाब पहन करके आएगी तो उसके ख़िलाफ़ जो है इस वक्त क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज करने की अपील कर रहा है और बात कह रहा है। इससे आप इसकी ज़हनी असबियत और इसकी नफ़रत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के बाहर जुमा की सुबह हाथापाई के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली चला दी है और एक वकील ने इस ताल्लुक से बताया कि वाक़या सुबह तकरीबन 10 बजे पेश आया। रोहिणी कोर्ट गेट के बाहर एक वकील और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान बहस हो गई थी, जिसके बाद गोलियां चलने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड और वकील के दरमियान तू में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर मज़ीद 2-3 वकील पहुँच गए। सभी के दरमियान हो रही बातचीत ने जल्द ही तशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली। इसी दरमियान गार्ड ने गोली चला दी। इस वाक़े में हालांकि कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। रोहिणी कोर्ट इलाके में गोलीबारी की खबर मिलने के बाद पुलिस फ़ौरन वहां पहुंची और जांच का अमल शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों और इन्हीं शाहिदीन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस खुसूसन पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये गोलीबारी अचानक हुई या फिर किसी मनसूबा बंदी के तहत अमल अंजाम दिया गया। पुलिस के जरिए गोली चलाने वाले मुलजिमीन की भी तलाश की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोहिणी गेट में और यहाँ के अदालत के हाथे में इस तरह की जो है चीज़ें सामने आती रहती हैं। नफ़रत फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडरान की जो है ज़बान थमने का नाम नहीं ले रही है। शिमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC की जानिब से तशद्दुद से मुतासरा जहांगीरपुरी में कई गैरकानूनी ढांचों को मुनहदिम करने के एक दिन बाद पार्टी की दिल्ली यूनिट के सरबराह आदेश गुप्ता ने मशरक़ी और जनूबी दिल्ली पुलिस कॉरपोरेशनों के मेयरों से भी कहा है कि अपने इलाकों में रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए इसी तरह की मुहिम चलाने के लिए ख़त लिखा है। गुप्ता ने इस मामले पर दिल्ली में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसके दौरान उसने आम आदमी पार्टी को फसाद पार्टी करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि उसके MLA और कौंसलर दिल्ली में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राशन कार्ड और वोटर शनाख्ती कार्ड दस्तयाब कराने में मदद कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक गैर किसी पेश की इत्तला के तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि बुलडोज़र की सियासत इस कदर आगे बढ़ रही है और लोग समझते हैं कि बुलडोज़र उनके घर तक नहीं आएगा या उनके मंदिर तक नहीं आएगा, लेकिन 2 वीडियो में इस वक्त आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। राजस्थान की सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, जहां पर एक मंदिर को, शिव मंदिर को गिरा दिया गया है और इसको आप आवाज़ के साथ सुनेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुलडोज़र को तो धर्म का पता ही नहीं है, उसको जहाँ हुक्म दिया जाता है वहाँ जाकर के वो कार्रवाई करता है। अलबत्ता मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को मुनहदिम करते हुए जो लोग खामोश बैठे थे वो सोच रहे थे कि बुलडोज़र उनके घरों तक नहीं पहुँचेगा, लेकिन ये बुलडोज़र वहाँ तक भी पहुँच चुका है। यह है शिव मंदिर को गिराने का मंजर। और इसी तरह मैं आपको बताऊँगा यूपी का एक और मंजर, जहाँ पर जो है एक SP के लीडर के घर को और उसकी इमारत को इस वक्त जो है ज़मीन बोस कर दिया गया है। यह है शाहजहाँपुर में SP के लीडर रोशन लाल वर्मा, इसकी गैर कानूनी इमारत करार देकर कि जो यहाँ पर भी बुलडोज़र चला गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आजकल भारत के मीडिया में और हर एक की ज़बान में बुलडोज़र छाया हुआ है और हर तरफ इस वक्त इसको लेकर की सियासत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाते हुए देखे जा रहे हैं और ये मंज़र लोगों के सामने आ रहा है। और अब बुलडोज़र लगता है कि जो है जो भी सियासी दुश्मन होगा बीजेपी का, उसके घर पर ये बुलडोज़र चलेगा, ऐसा महसूस किया जा सकता। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये SP लीडर वर्मा के घर की इमारत है, जिसको जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ नफ़रत है तो दूसरी जानिब मोहब्बत। ये देखिए, इंडियन आर्मी की जानिब से मुसलमानों के लिए एक इफ्तियार पार्टी का जो है एहतिमाम किया गया था और ये अरनोरा डोडा डिस्ट्रिक्ट से सामने आया हुआ ये तस्वीरें हैं, जिसमें जो है नमाज़ पढ़ने का और मुसलमानों के साथ इफ्तारी के साथ उनको तोहफे दिए जाने की ये वीडियोस भी सामने आ रही है और ये तस्वीर सामने आ रही हैं, जिसको देखकर कि जो है सुदर्शन का नफ़रत करने वाला एंकर इस ट्वीट को जो है रिट्वीट करते हुए इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि महसूस होता है कि अब ये बीमारी हमारी आर्मी में भी फैलने लगी है। किस कदर नफ़रत करता है सुदर्शन का एडिटर, आप अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ उसकी तो नफ़रत इस वक्त जो है जग ज़ाहिर है। आइए एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो है कर्नाटक से आ रही है। यहाँ कर्नाटक में एक मुस्लिम फैमिली की कार हादसे का शिकार हो गई, तो उस मौके पर इम्मड़ी सिद्धारामेश्वर स्वामी जी जो मशहूर हैं वहाँ करीब से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने जो है हादसे में ज़ख्मी होने वाले
जितने भी लोग थे उनकी इब्तिदाई तिब्बी जांच कराते हुए और उनको जो है पूरी तरह से मिजाज पुरसी करने के बाद उनको जो है करीब के हॉस्पिटल में अपनी कार में पहुंचाने का काम किया है, जिसकी वजह से ये तस्वीर इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कर्नाटक में। नाज़रीन गिरामी, रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नफ़रत फैलाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में नफ़रत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसी दरमियान में इस तरह की तस्वीरें जब निकल कर के सामने आती हैं तो वो सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ खूब वायरल होती हैं। नाज़रीन गिरामी, आज़म खान से मिलने गए थे शिवपाल तो सियासत में घुमासान शुरू हो गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बाद समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव से पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान नाराज़ नज़र आ रहे हैं। खुसूसन आज़म खान का खीमा उन्हें नज़रअंदाज किए जाने से मायूस है और अखिलेश के चचा शिवपाल यादव भी भतीजे से नाराज़ बताए जा रहे हैं। इस दरमियान सीतापुर जेल में 2 साल से बंद समाजवादी पार्टी रुकन असेंबली आज़म खान से मुलाकात के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल यादव जेल पहुंच गए। इस खबर ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल की तरफ इशारा किया है। आज़म खान से मुलाकात के बाद शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी को आज़म खान की मदद करनी चाहिए थी। आज़म खान का मसला लोकसभा में भी उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया। एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल ने कहा कि आज़म खान के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए हैं। ये भी कहा कि आज़म खान बहुत सीनियर लीडर हैं और 10 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। शिवपाल ने यह भी कहा कि वो आज़म खान के साथ हैं और आज़म खान भी उनके साथ हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मुमकिन है कि जितने भी एसपी से इस वक्त नाराज़ लीडरान हैं वो कहीं अपनी अलग पार्टी न बना लें। नाज़रीन गिरामी, इधर धर्म संसद में जो तकरीरें हुई थी वो तो जग ज़ाहिर है मुसलमानों के कत्लेआम की बात हुई थी और गांधी जी के सिलसिले में मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दिल्ली के पुलिस का मानना है कि वहाँ पर नफरत अंगेज़ तकरीर नहीं हुई। इस बात को लेकर के जो है अब सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार लगी है। जी हाँ, दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी की तकरीब के दौरान दी गई जिस तकरीर में हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र कायम करने का मुतालबा किया गया था, दिल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि वो नफरत अंगेज़ तकरीर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए बेहतर हलफनामा दायर करने का मुतालबा किया। दिल्ली धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हलफनामा दाखिल किया गया। इस हलफनामे में पुलिस ने दावा किया था कि गुज़िश्ता 19 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़िद होने वाली धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर नहीं की गई थी। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में यह भी कहा कि धर्म संसद की वीडियो और दीगर मवाद की गहराई से जाँच की गई है। इसमें इंकिशाफ हुआ है कि किसी भी फ़िरक़े के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयान नहीं दिए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ दिल्ली पुलिस के बयान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और बेहतर हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये सिर्फ तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट है या फिर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का भी यही मौक़िफ़ है। कहते उन्होंने कहा कि बेहतर अंदाज में इस रिपोर्ट को पेश करें। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संभल की जामिया मस्जिद में जल चढ़ाने को लेकर के वार्निंग दी गई थी और यहाँ की हिंदुत्व मुतआस्सिब दहशतगर्द और ग्रुपों की जानिब से लगातार धमकियाँ मिल रही थी। ऐसे में रुकने पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दे दिया है, जो समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा कि अगर संभल की जामिया मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हज़ारों मुसलमानों का खून चढ़ाया जाएगा। मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हालात बेकाबू हो जाएंगे। संभल इंतज़ामिया से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बर्क ने जुमा की नमाज और ईद वाले दिन सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। दरअसल संभल की जामिया मस्जिद के बारे में कुछ लोग मुबैना तौर पर दावा करते हैं कि उसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे लोगों का मानना है कि मस्जिद के अंदर भगवान शिव का मंदिर है। इस तरह के दावों के बारे में एमपी शफीकुर रहमान ने कहा कि अगर लोगों ने अंदर जल चढ़ाने की कोशिश की तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने जामिया मस्जिद में ईद की नमाज के लिए पुलिस सिक्योरिटी के इंतजाम का मुतालबा किया है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोज़र चलाने के बारे में रहमान ने कहा, ये सब हुकूमत के कहने पर हो रहा है, उसके इशारे पर हो रहा है। जबकि मस्जिद से मुल्हिक मंदिर है, वहाँ बुलडोज़र नहीं चला। हुकूमत खुद हालात ख़राब करना चाहती है। नाज़रीन गिरामी, इधर पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू में सीआईएसएफ के जवानों से भरी बस पर एक ग्रेनेड हमला होने की वजह से बड़ी तशवीश पाई जा रही है और सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सुबह की शिफ्ट ड्यूटी पर जा रहे सीआईएसएफ के 15 अहलकारों से भरी बस पर बड़ा दहशतगर्द हमला होने की खबरें आई हैं। ये मामला जुमा की सुबह तकरीबन 4:15 बजे का है। जंगजुओं ने जम्मू में चड्ढा कैंप के करीब फौजियों की बस पर यह हमला किया था।
CISF ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، حالانکہ فوجیوں نے فوری طور پر مورچہ سنبھال لیا اور جنگجوؤں کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ موقع سے فرار ہو گئے ہیں یہاں سے جنگجو۔ CISF ذرائع کے مطابق جنگجوؤں کا منصوبہ بس پر حملہ کر کے زیادہ سے زیادہ فوجیوں کی جان لینا تھا، ان کے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا تھا، لیکن جوابی کارروائی میں انہیں بھاگنا پڑا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز نے ایک دہشت گرد کو مار گرانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جموں کشمیر میں یہ روز کا معمول ہو چکا ہے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ ہوا۔ ناظرین گرامی، تہاڑ جیل میں 2 گروپوں کے درمیان میں پرتشدد جھڑپ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، تہاڑ جیل میں قیدیوں کے 2 گروپوں کے درمیان اس پرتشدد تصادم میں تقریباً 15 قیدی زخمی ہو گئے، ان میں سے کچھ اب بھی زیر علاج ہیں۔ ذرائع کی مانیں تو یہ واقعہ جیل میں قیدیوں کے درمیان بالادستی کی لڑائی میں پیش آیا، یعنی کہ میں بڑا اور تو بڑا، یعنی ایک دوسرے پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ تہاڑ انتظامیہ کے مطابق تہاڑ جیل میں قیدیوں کے پرتشدد تصادم کا یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا تھا، جس میں جیل نمبر 8 اور 9 سے بند قیدیوں کے درمیان تصادم ہوا تھا۔ اس واقعے میں 15 قیدی زخمی ہوئے تھے۔ تہاڑ انتظامیہ نے یہ بھی بتایا کہ کچھ قیدیوں کی ابتدائی طبی امداد کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ بھارت ہے اور یہاں پر اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور ہر دن نفرت کا ماحول ہی ماحول ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔